নমস্কাৰ আজি ক্লাস 11 और माइक्रो इकोनॉमिक्स और बेष्टिवादी अर्थविज्ञानर आमी उत्पादन फलन चैप्टारटुলৈ डिस्काशन কৰিব গৈ আছো। আজি অলমোस्ट শেষ কৰিম। এটা কনসেপ্ট মই বুজাই পেলাই লাষ্ট ভিডিওটোলৈকে আমি দীৰ্ঘকালৰ উৎপাদন ফলন লং ৰান প্ৰডাকশন ফাংচন কনসেপ্টটো ডিসকাशन কৰিছিলো। ক্লিয়াৰ? তাৰ আন্ডাৰত CRS, IRS, DRS সমহাৰ মাত্ৰাৰ প্ৰতিদান, ক্ৰমবৰ্ধমান মাত্ৰাৰ প্ৰতিদান, ক্ৰমহ্ৰাসমান মাত্ৰাৰ প্ৰতিদান লৈ আমি ডিসকাशन কৰিছিলো। ওকে, তেতিয়া হলে আমি শর্ট রান প্রোডাকশন ফাংশন কনসেপ্টটো কৈছিলো যেটো বেসড অন ল অফ ভেরিয়েবল প্রপোর্শনস মিন্স শস্যকালৰ উৎপাদন ফলনটো পৰিৱৰ্তনশীল অনুপাত বিধিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। ক্লিয়াৰ? সো হি পৰিৱৰ্তনশীল অনুপাত বিধিৰ কনসেপ্টত আমি যে তিনটা ৰিটাৰ্নস বা প্ৰতিদান পাইছিলো সেই কনসেপ্টটো আমি নিউমাৰিকেল দেখাব যত্ন কৰিছো, এটা প্ৰ্যাকটিক্যাল কনসেপ্ট। ক্লিয়াৰ? সো তেতিয়া হলে বলা আমি সেই বস্তুটো চাওঁ। Practicals of law of variable proportions. Clear? That means law of variable proportion যদি তোমার টেবুলেটেড ফর্ম তালিকা কৰিব আহে তেতিয়ালে তুমি কেনেকা কৰিবা, কোনো প্ৰবলেম নাই। তিনটা স্টেজ পৰ্যায় তুমি জানা। প্ৰথমটো আছিল ক্ৰমবৰ্ধমান উপাদানৰ প্ৰতিদান, ওকে। সেকেন্ডটো আছিল ক্ৰমহ্ৰাসমান উপাদানৰ প্ৰতিদান, ক্লিয়াৰ। লাস্টটো আছিল ঋণাত্মক উপাদানৰ প্ৰতিদান, নেগেটিভ ৰিটাৰ্নস টু এ ফ্যাক্টর। ক্লিয়ার? তুমি সিম্পল কি কৰিবা, তোমাৰ फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर दिया থাকিব और मुठ उत्पादन तो दिया থাকিব, তুমি তার পৰা কি কৰিবা प्रांतिक उत्पादन तो उलाई लबा। क्लियर? मैं बोलना चाहता हूँ ये वेरिएबल फैक्टर दे देगा और टोटल प्रोडक्शन दे देगा, मतलब टोटल प्रोडक्ट एंड वेरिएबल फैक्टर दे देगा। तुमको जस्ट निकालना है ये एमपी वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो एमपी कैसे निकालते हैं? टीपी का डिफरेंस एमपी होता है। मैं कॉपी से टोटल प्रोडक्ट और जी डिफरेंस तो एमपी है। क्लियर? तेतियाहले एमपी तो तुम यात उलाई लबा, तार पिছত मैं लास्ट कॉन्सेप्ट पिছত देखुৱাই আছো। ओके, तेतियाहले एमपी ওলাবৰ কাৰণে ফার্স্ট ঘৰত তুমি ড্যাশ দিবা। সেকেন্ড এমপি ওলাবৰ কাৰণে টিপি ডিফারেন্স ইয়াৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিবা, এইটো ওলাব। ক্লিয়ার? ইয়াৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিবা, 20 - 8 12। क्लियर? नेक्स्ट 28 - 28 होगा। उसके बाद 28 - 28 0 होगा। उसके बाद 20 - 28 20 - 28 कितना होगा? -8 होगा। क्लियर? फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट एमपी डैश होता है, उसके बाद टीपी का डिफरेंस देखो 8 - 0 8, 20 - 8 12, 28 - 28 28 - 28 0, 20 - 28 -8. Clear? So this is nothing but what? Marginal product. So marginal product simply we know what difference between total products. तो एमपी से निकलता है ना, एमपी नथिंग बट टीपीएन माइनस टीपीएन -1। मतलब दो टीपी का जो डिफरेंस, सेकेंड टीपी से फर्स्ट वाला डिफरेंस करो, इससे ये माइनस 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 करो, तो ये निकल जाएगा। 8 - 0 8, 20 - 8 12, 28 - 28 28 - 28 0, 20 - 28 -8। क्लियर? सो फाइनली तुम्हारे हाथ में एमपी आ गया। क्लियर? और ये फॉर्मूला यूज किया मैंने। तो अभी जो हाथ में एमपी आया ना, ये तो जो तुम्हारे हाथ प्रांतिक उत्पादनशीलता बा प्रांतिक उत्पादन जी আহিছে तार परिवर्तनशील उपादाনৰ। क्लियर? সেই বস্তুটো তুমি চাবা। তেতিয়ালে চোৱা, प्रथम तुम चुआ ये डैशर पर एमपी तो भालके मार्क करवा। एमपी तुमको दिखना है अच्छा से। एमपी कितना तक ग्रेजुअली बढ़ा वो चीज़ देखो। 8 से 12 हुआ, 12 तक बढ़ा, 8 to 12 बढ़ गया, उसके बाद घट गया, है ना। तो जितना तक बढ़ा उतना तक तुमने एक लाइन खींच लो इसे। ओके, मतलब सीधा हो जाएगा ना, इतना तक बढ़ा, है ना। ये इसे पकड़ लो। क्लियर? नेक्स्ट टाइम तुम देखो 12 के बाद 8 हुआ, मतलब घट गया, उसके बाद कंटिन्यूअसली इतना तक घटा, है ना। 0 तक जब होगा ना, ये 0 तक तुमको क्या करना है, फिर एक ठो एमपी जब तक 0 होगा तब तक तुम और एक ठो ऐसे घर बना लो। बाद में जब एमपी निगेटिव होगा उसमें लास्ट एक तो ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है, ये हो गया। अभी कॉन्सेप्ट ये हुआ
जब तक एमपी बढ़ते जाएगा मैं कब বিচাৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে প্ৰান্তিক উৎপাদনটো বাঢ়ি যায় সেইখিনিলৈকে তুমি এটা পৰ্যায় ধৰিবা যেতিয়ালৈকে এমপিটো কমি কমি 0 লৈকে আহে কমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 0 লৈকে আহে সেইখিনি তুমি আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়টো লবা যাৰ 0 ৰ পিছত যেতিয়া এমপিটো নেগেটিভ হৈ যায় হেতু থাৰ্ড স্টেজ লবা ক্লিয়াৰ এমপি ইনক্ৰিজেস ফাৰ্স্ট স্টেজ এমপি ডিক্ৰিজেস আপ টু 0 সেকেন্ড স্টেজ এমপি বিকামস নেগেটিভ থার্ড স্টেজ ক্লিয়ার তেতিয়া হলে এই যে এমপি বাঢ়িছে টিপি ডিফারেন্স এমপি টিপি ডিফারেন্স এমপি টিপি ডিফারেন্স এমপি আর যিমানখিনি পৰ্যায়লৈকে এমপি বাঢ়িব সেইখিনি ফার্স্ট স্টেজ যিমানখিনি স্টেজলৈকে এমপি কমিব সেকেন্ড স্টেজ যোৰ পৰা এমপি নেগেটিভ হ'ব থার্ড স্টেজ ক্লিয়ার তেতিয়া হলে দিস ইজ হোৱাট স্টেজ ফার্স্ট স্টেজ ক্লিয়ার প্ৰথম পৰ্যায় দিস ইজ হোৱাট this is second stage clear this is what third stage clear hol goal dia first stage mp increases second stage mp decreases third stage mp gradually becomes what negative मतलब mp negative हो गया last stage में clear सो एमपी जब तक बढ़ेगा वो फर्स्ट स्टेज होगा एमपी जहाँ से शुरू होगा घटने वाला चीज़ वो सेकंड स्टेज होगा एमपी जहाँ से निगेटिव होगा 0 के बाद निगेटिव ही होगा तो वो होगा थर्ड स्टेज मैं कब বিচাৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে প্ৰান্তিক উৎপাদনটো পজিটিভলি হৈ থাকে পজিটিভ হৈ মিন্স পজিটিভ একচুৱেলি নহয় বাঢ়ি থাকে যেতিয়ালৈকে প্ৰান্তিক উৎপাদন বাঢ়ি থাকিব সেইখিনিলৈকে ফাৰ্ষ্ট স্টেজ হ'ব যোৰ পৰা এমপিটো কমা আৰম্ভ কৰি আপ টু 0 পাব সেইটো সেকেন্ড স্টেজ হ'ব जोर পৰা एमपी नेगेटिव स्टार्ट হ'ব क्लियर 0 পিছত হ'ব এটো থার্ড স্টেজ ক্লিयर হেকাৰণে তুমি एमपी টো ইয়াৰ পৰা উলাই লবা ক্লিयर এতিয়া ফার্স্ট স্টেজ টো তুমি কি পাইছা ইনক্রিজিং ৰিটাৰ্নস ক্লিयर হোৱাট ইনক্রিজিং ओके सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर का मतलब वेरिएबल फैक्टर का रिटर्न्स मिला इसमें तुमको मिला डिमिनिशिंग क्लियर व्हाट डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैपिटल लिख देता हूँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्लियर दिस इज व्हाट नेगेटिव रिमेंबर नेगेटिव रिटर्न्स ओके negative returns to a factor clear हो गया सो फर्स्ट स्टेज में तुमको क्या मिला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर टू ए फैक्टर का मतलब वेरिएबल फैक्टर से रिटर्न मिला नॉट फिक्स्ड फैक्टर क्लियर सो फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्रमवर्धमान उपादाনৰ प्रतिदान सेकेंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्रमह्राসমান उपादाনৰ प्रतिदान थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर ऋणात्मक उपादाনৰ प्रतिदान क्लियर सो फाइनली दिस थ्री स्टेज operated under the law of variable proportions clear मतलब any production process में short run में we see what 3 stages or 3 scenario of production function clear so first stage में क्या होता है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है मतलब एमपी इंक्रीजेस दिस इज सेड टू बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर सेकेंड स्टेज एमपी घटता है दो इट इज पॉजिटिव सो टीपी इंक्रीजेस एट एन डिमिनिशिंग रेट क्लियर सो दिस इज सेड टू बी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर थर्ड स्टेज में एमपी बिकम्स नेगेटिव और अगर एमपी नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली टीपी फॉल्स होगा एंड दिस कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर तो फाइनली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तुमको 3 स्टेज मिला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड फाइनली नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्लियर सो दैट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर तो फाइनली तुम यार पर की करिबा वेरिएबल फैक्टर दिया থাকিব टीपी टू दिया থাকিব टीपीर पर एमपी टू ओलाबा और एमपी
যিমানলৈকে বাঢ়িব তেতিয়া সেইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ হ'ব, য'ৰ পৰা কমি 0লৈকে আহিব এইটো সেকেন্ড ষ্টেজ হ'ব, 0ৰ পিছত নিগেটিভ হোৱাখিনি থাৰ্ড ষ্টেজ হ'ব। ক্লিয়াৰ? जितना तक एमपी बढ़ेगा दिस इज फर्स्ट स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। जहाँ से एमपी घटते जाएगा अप टू 0 तक वो होगा सेकेंड स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। 0 के बाद निगेटिव शुरू होगा तो निगेटिव से जितना होगा दैट एरिया इज सेड टू बी निगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। सो फाइनली देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, diminishing returns to a factor and negative returns to a factor. Clear? Under short run production function which we explained by the law of variable proportions. Okay, तो आज हम लोग ने फाइनली प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्ट का क्लोज करना है। ठीक है, शॉर्ट रन हो गया, लॉन्ग रन हो गया, फाइनली मैंने प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट एक ठो दिखाया अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर लेके स्टार्ट करना है। ओके, तब तक के लिए क्लोज करता हूँ। थैंक यू।